हाँ जी, तो बच्चे हुण आपां गल करदे बॉडीज बारे। जिहड़ी बॉडी है ना, वो साडे कोले दो तरह दी बॉडीज हुंदी। एक तो होंदियां ने रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज, एक होंदियां ने सॉफ्ट बॉडीज। देखो कोई ज्यादा मतलब औखा काम नहीं है, ये तो सबको पता ही है। रिजिड मतलब ठोस, है ना? की बोलते हैं ठोस, मतलब एक अजिही बॉडी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पंजवां पार्टिकल, 6 7 8 ऐसा। तो बच्चे जो पहला पार्टिकल है ते दूसरा पार्टिकल है, इन्हां दे विचकार ना कुछ डिस्टेंस हुंदा। मान लो डिस्टेंस हैगा r, ते दूसरे ते तीसरे दे विचकार भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। मान लो इनू r1 कह दो, इनू मान लो r2 कह दो, जरूरी नहीं कि सारे दा सेम होगा। तो रिजिड बॉडीज बच्चे वो वाली बॉडीज हुंदियां ने कि जदों तुसीं इन्हां ते एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओगे तो बच्चे इन्हां दे जिहड़ा इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जिहड़े दे मॉलिक्यूल्स ने, मॉलिक्यूल्स दे विचकार दा डिस्टेंस जां जिहड़ा पार्टिकल्स दे विचकार दा डिस्टेंस, जिहड़ा डिस्टेंस है उहनूं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलिया जांदा है, जां इंटर पार्टिकल डिस्टेंस तुसीं बोल सकदे हो, वो चेंज नहीं हुंदा। मतलब कि लिखांगे दोज बॉडीज which have fixed shape are called rigid bodies। देखो पत्थर नूं तुसीं तोड़ सकदे हो, टुट जाऊगा, बट ओदी शेप नहीं चेंज कर सकते, उन्हें तो प्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उहदे पार्टिकल दे जिहड़े डिस्टेंस है ना, वो चेंज नहीं कर सकते। ना ही तुसीं उहनूं इदां स्ट्रैच कर सकते हो। की कर सकते हो? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ नो सर, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਫਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ r1, 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ those bodies which do not have fixed shape are called soft bodies। जिवें तुहाडे कोल ਉਹ ਇੱਕ ਰਬੜ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸੌਫਟ ਬਾਡੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? यस सर। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। मतलब जरूरी नहीं होता भी हमेशा अपने को कोई सर्कल होगा, स्फीयर होगा, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है। इन्हें इरेगुलर शेप्ड बॉडी बोलेगा। इरेगुलर मतलब कोई मर्जी शेप है, इरेगुलर शेप बॉडी। हुण इहदे विच की है, आ 1 नंबर पार्टिकल, आ 2 नंबर पार्टिकल। देखो होणगे तां लखां करोड़ां, बट असीं 2 पार्टिकल की गल करदे हां क्योंकि असीं समझना चाह रहे हैं एक्चुअल च हुंदा की है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ r। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो नाम तो क्लियर है,
इंटर का मतलब इंटरनल, इंटरनल फोर्स की फोर्स मॉलिक्यूल्स दे विचकार दी फोर्स, मतलब इंटरनल फोर्स की है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की है, इट इज द इंटरनल फोर्स between the molecules of a body। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਟਰੈਕਟਿਵ मतलब एक पार्टिकल हमेशा दूसरे पार्टिकल ਨੂੰ अट्रैक्ट ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब कि ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀ ਉਹਦਾ मतलब ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੀਚਰਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੱਚੇ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब फिर पार्टिकल ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, मतलब ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, बट जे ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ फोर्स लगा के पार्टिकल ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? Yes, sir. ओके, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 1 ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ 1 ਪਾਰਟੀਕਲ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ पूरी बॉडी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਅਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, 0। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬॉडी अपने आप आप कह रहे मूव नहीं करती। जिवें आ मतलब मोबाइल है,
मोबाइल दे विच मान लो करोड़ पार्टिकल ने, ठीक है, तो करोड़ पार्टिकल ने जिहड़े वो एक दूसरे दे की इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं, बट नैट रिजल्ट की है जीरो। इसे करके मोबाइल अपने आप मूव नहीं करता। इनू मूव कराने वास्ते सानू बाहरों की लगानी पैंदी है फोर्स, ठीक है। मतलब अगर तुसी इस बॉडी नू मूव कराना चाहते हो then you have to apply an external force, you have to apply an external force, बट असी ये भी नहीं कह सकते भी अंदर फोर्सेस नहीं लगदियां ने पेयर्स लगदियां ने इक्वल एंड ऑपोजिट लगदियां ने ते उन्हां दा रिजल्ट की हुंदा है। मतलब जिहड़ी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ने बच्चे, जे मैं तुहानू बिल्कुल एक लाइन दे विच कहा, जिहड़ी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ने जिहड़ियां, जिन्हां नू असीं की बोलिया इंटरनल फोर्सेस, इन्ना करके कदे भी कोई बॉडी मूव नहीं कर देगी। मतलब इंटरनल फोर्सेस करके कोई भी बॉडी जिहड़ा की है मोशन है वो शो नहीं करती। अगर तुसी किसी बॉडी नू मूव कराने हैं, इफ वी वांट टू मूव a body, we have to use external is it clear to all? Yes, sir. Okay, ठीक है। ये हो गया इंटरनल फोर्सेस हो गया, रिजिड बॉडीज हो गई, सॉफ्ट बॉडीज हो गई, ठीक है। चलो हुण असीं गल करते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है, ठीक है। क्वेश्चन स्कूल लेवल क्वेश्चन की आऊगा, सुन लो, 5 नंबर क्वेश्चन आता हर बारी, what do you mean by center of mass, derive an expression of position vector of center of mass for two particle system 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो टू पार्टिकल सिस्टम, मैं तुहानू कहना देखो जिहड़ी कोई बॉडी है उसदा लखां करोड़ा पार्टिकल थोड़ी असीं सॉल्व करी जावांगे। असीं समझण वास्ते हमेशा सौखे तो सौखा काम करना, नो डाउट असीं सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट एक पार्टिकल का स्टडी करते हैं, ठीक है। बट दो पार्टिकल सिस्टम, अगर किसी बॉडी च दो पार्टिकल ने, वो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कित्थे होगा, असीं ये फाइंड करांगे, क्या ना पोजीशन वेक्टर फाइंड करो किहदा, सेंटर ऑफ मास। तो असीं की कीता जी, सपोज करो तो तुहानू पता लग ही गया होना भी लैक्चर है किवें दा हैगा, ते अज ही तुहानू ये लैक्चर दोबारा देखना पਊਗਾ। सपोज आप तुहाडी वाई एक्सिस है जी, आ तुहाडा एक्स एक्सिस है, असीं कोआर्डिनेट्स ले लए ते इत्थे सपोज करो भी तुहाडे कोल कोई एक बॉडी पई, ठीक है। ये बॉडी दे विच असीं अजम्पशन ले रहे भी साडे कोल सिर्फ दो ही पार्टिकल ने, एक पार्टिकल इत्थे बैठा, एक पार्टिकल इत्थे बैठा, ठीक है जी। ए पार्टिकल का जिहड़ा मास है वो m1 है, ए पार्टिकल का जिहड़ा मास है m2 है, ते ए साडे कोले की है ओरिजिन है। ते आपां नूं पता है ओरिजिन तो जिहड़ा पार्टिकल बचे, पार्टिकल नंबर 1 है, इत्थों तक दा जिहड़ा की एक वैक्टर होगा, ये वैक्टर नूं असीं की बोलिया सीगा, इस वैक्टर का नाम की हुंदा बच्चे, Resultant. नहीं, पोजीशन वेक्टर। जो सिंपल है ना, ओरिजिन तो सानू उस पार्टिकल की पोजीशन दस रहा है भी, ये पोजीशन का नाम की है पोजीशन वेक्टर, बस
सिंपल। ते ओरिजिन तो m2 की पोजीशन दसन वाले को असीं की बोलांगे, ये भी पोजीशन वेक्टर। ये किहड़ा पोजीशन वेक्टर है, ये हैगा r2 वेक्टर। कुछ याद रखने वाला नहीं हैगा, पोजीशन दसन वाले वेक्टर नूं की बोलांगे, पोजीशन ही वेक्टर बोलांगे, होर असीं की बोल सकते कुछ भी नहीं। अच्छा, ये दोनों पार्टिकल्स ने बच्चे जिहड़े दोनों पार्टिकल्स दे विचकार दा सानूं कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी दिख रहा है, जिहड़ा इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस मैं तुहानूं दस्सिआ। अच्छा, हुण जिहड़ी ये बॉडी है बच्चे, ये बॉडी दा जिहड़ा टोटल मास है वो m है, मतलब m1 प्लस m2, टोटल मास कितना है m। ठीक है जी। अच्छा, वो असी ना जिहड़ा इहदा सेंटर ऑफ मास है, मतलब जिथे असी मन्नांगे सारे का सारा मास की है कंसनट्रेट होया होया है, वो असी इहदे बिल्कुल मिड च मान लिया। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मैं अज्यूम कर लिया भी इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो इत्थे cm लिख देना मैंने। cm मींस सेंटर ऑफ मास, मतलब इत्थे सारे का सारा मास की है कंसनट्रेट होया होया है। कितना मास है m। चलो हुण एक बार ये सेंटर ऑफ मास दा असी पोजीशन वेक्टर बना लेंदे हैं ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर आर किदा सेंटर ऑफ मास। चलो मैं स्मॉल च लिख लूं, ये भी हैगा पोजीशन वेक्टर बट किदा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। तो इत्थे r1 लिख देना मैं। r1 की है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, r2 की है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2, ते rcm की है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m। इन्नी गल क्लीयर है। आ चीज मन ध्यान से रखियो भी ए वाला जी सिचुएशन है ना, ये असी अज्यूम की हुई है, अजम्पशन है साडी, एक्चुअल है नहीं है। अच्छा हुण देखो जिहड़ा बच्चे पार्टिकल m1 है वो पार्टिकल m2 नूं की करूगा, अट्रैक्ट करूगा या रिपेल करूगा। रिप्लाई करया करो बच्चे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करया करो। m1 पार्टिकल m2 नूं की करूगा, अट्रैक्ट होगा सर। वेरी गुड, अट्रैक्ट करूगा। कि किस साइड देखो m1 m2 नूं अट्रैक्ट करूगा, मतलब इन दिस साइड। तो मैं इहदी जे अट्रैक्शन दिखाउणी होवे, अट्रैक्शन वाली फोर्स वो इस साइड है जिहड़ी मैं हुण समझा के आया। ये की है फोर्स किहदे ते लगी है, दूसरे पार्टिकल ते लगी है, किहदे द्वारा, पहले द्वारा। तो F21 की है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ते केड़ी फोर्स है बच्चे, ये इंटरनल फोर्स है, इसका नेचर की है अट्रैक्टिव। हुण जिहड़ा सेकंड पार्टिकल है वो की है फर्स्ट पार्टिकल नूं भी की करूगा, अट्रैक्ट करूगा। वो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल नूं अट्रैक्ट करूगा इन दिस साइड। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹ फोर्स आऊगी वो इस साइड। ये फोर्स ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ फोर्स लगी है पहले पार्टिकल से, किहदे द्वारा, दूजे द्वारा। मतलब F12 वेक्टर की है, ये लिखना पऊगा जे 5 नंबर च क्वेश्चन आऊगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ते दोनों फोर्सेस बच्चे सानू पता की होणगियां इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ की होगा F21 वेक्टर। अच्छा हुण ये तो देखो सिस्टम दे विच इंटरनल फोर्स होगी जिहड़ी लगनी। हुण असीं इस सिस्टम नूं मूव कराउणा है, मूव कराउण दे लई सानूं की लगाउणी पैणी है, एक बाहरों फोर्स लगाउणी पैणी है। मान लो कि जिहड़ा M1 फोर्स M1 पार्टिकल है, ठीक है, इस M1 पार्टिकल दे सपोज करो कि तुसीं फोर्स जिहड़ी लगाती ऐदां लगाती, ठीक है, एक इत्ते फोर्स लगाती, जिहड़ी ये फोर्स है बच्चे F1 फोर्स है,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ F2 ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ F1 F2 ਕੀ ਨੇ? एक्सटर्नल फोर्सेस ने। F1 की है एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, F2 की है एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। तो बच्चे हुण मैं जे तुहानूं पुछां भी टोटल फोर्स दसो मैनूं, टोटल फोर्स ऑन बॉडी, तो मैं दस सकदा टोटल फोर्स कितनी होगी? F1 F plus F2 से। हाँ जी, ते इंटरनल फोर्सेस भी एक बार आप लिख लेना। टोटल फोर्सेस बच्चे किहड़ी लग रही है? देखो F1 लग रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनू वेक्टर च लिख लो, प्लस एक F2 फोर्स लग रही है, फिर प्लस इंटरनल फोर्स एक F12 लग रही है, फिर एक F21 लग रही है, ठीक है। अच्छा, किहदे ते लग रही है? M1 प्लस M2 दोनों के मासिस के सम ते, जिहदे नाल जदों दोनों देखो दो पार्टिकल ने, मतलब पूरी एक बॉडी है, उसका मास मैं ऐड करता, उते फोर्स लगूगी, तो आपको पता ना बच्चे उहदे विच की पैदा होगी? एक एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला पढ़िया होया। अच्छा, सानू पता जिहड़ी फोर्स 1 2 है ओहो की इक्वल ते ऑपोजिट है, तो बच्चे इनू मैं लिख सकदा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस आ लिख दी F12, जिहड़ी F21 है बच्चे इनू मैं माइनस ऑफ F12 लिख सकदा इज इक्वल टू एक ही होगा, ये होगा टोटल मास, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो जो सिस्टम मूव करूगा तो सारा सिस्टम के इथों मूव करूगा, ऐदा मूव करूगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की दी होगी? सेंटर ऑफ मास दी होगी, सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ मास मूव करूगा। तो देखो आ फोर्सेस बच्चे की हुए कैंसल, तो नेट फोर्स की बची F1 प्लस F2 इज इक्वल टू M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हुण देखो F1 किहड़ी फोर्स है? F1 फोर्स है बच्चे लगी है जिहड़ी M1 ते, तो M1 दी जिहड़ी एक्सेलरेशन होगी कितनी होगी? A1। F2 फोर्स लगी है सेकंड पार्टिकल पे, जिहदी एक्सेलरेशन कितनी होगी? A इज इक्वल टू हो गया M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो जो पहले पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से फोर्स लग रही है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास की मूव होगा विद दिस एक्सेलरेशन। इनू लिख लो जी इक्वेशन नंबर 1। हुण बच्चे सानू सारिआं नू पता भी जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो की हुंदा है? वो हुंदा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ते सानू ये भी पता है कि जिहड़ी वेलोसिटी हुंदी है वो की हुंदी है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ की हुंदी है? डिस्प्लेसमेंट। इत्थे मैं डिस्प्लेसमेंट नू R नाल लिख रहा। तो बच्चे जे इस V की वैल्यू असीं इत्थे पुट कर दईए, ध्यान नाल सुनियो, ये मतलब एक स्टैप अलग तो चल पिया हुण, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू की होगा? देखो d/dt, V की वैल्यू पुट करोगे तुसीं dr/dt। तो बच्चे एक ही आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया d स्क्वायर, मतलब d × d d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। ये तो मैं दस्या होया इहनूं की बोलदे हैं असीं? डबल डेरिवेटिव। की बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। आ तुसीं फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की है असीं बच्चे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। की फाइंड करना? पोजीशन वेक्टर। बट साडे कोल इक्वेशन का चा रही है? एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ की बना लिया? पोजीशन वेक्टर। देखो जी इत्थों तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। तो एदी वैल्यू की है इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर, पुट इन 1 वी गेट। तो इत्थे साडे कोल M1, देखो जिहड़ा एक्सेलरेशन A1 है, तो पोजीशन वेक्टर की लिखांगे असीं R1। इसदा मतलब ये बच्चे की लिखा जाऊगा? लिखा जाऊगा d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। देखो R1 क्यों लिखा है? एक्सेलरेशन A1 की दी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन A1 इस पार्टिकल M1 दी एक्सेलरेशन है, ते जिहदा पोजीशन वेक्टर कौन है? R1 है, ठीक है। तो मैं R1 लिखता हूं। अच्छा, फिर हैगा प्लस M2, एक्सेलरेशन A2 की दी एक्सेलरेशन है? वो सेकंड पार्टिकल दी, मतलब पोजीशन वेक्टर केड़ा लिखा जाऊगा? सेकंड वाला लिखा।
इक्वल टू इधर की चल रहे m एक्सेलरेशन की दी सीगी सेंटर ऑफ मास दी मतलब पोजीशन वेक्टर किदा लिखा जाऊगा सेंटर ऑफ मास इनटू dt ठीक है जी। अच्छा इथों बचे d स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये अपने को आ गया अपने को आ गया बचे m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू क्या आ गया m इथों भी चलो कॉमन कर लो d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ते आ गया m r ऑफ की हो गया सेंटर ऑफ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦੋ ਤਾਂ ਬਚੇ r अच्छा वेक्टर पा लो यार वेक्टर ना भूल जाओ वेक्टर बहुत जरूरी है m ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ वेक्टर पा ਦਿਓ मास है वो ਇਹਦਾ मतलब r सेंटर ऑफ मास बच्चे की हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन कैपिटल M का मतलब की है m1 प्लस m this is the formula to calculate position vector of center of mass very very important ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ numerical solve करने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है डेरिवेशन करनी है ਤੁਸੀਂ पेपर वास्ते देखो जी किसी ਨੂੰ कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं होया तो पूछ सकते is it clear to all sir yes sir स्टार्टिंग सुनने लगो फार्मूला बड़ा औखा जाए पर हम जो ਆਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ देखो RCM की है RCM है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्टिंग से ਦੱਸਦਾ ਜੀ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है R1 की है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1 R2 की है पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देखो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ R है ਹਨਾ R ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ R है वो फंक्शन हो सकता है कल्ले x का भी हो सकता है y का भी हो सकता है z का भी हो सकता है तीनों का हो सकता है जे वन डायमेंशन होगा तो r की जगह ते x लिख देंगे जे टू डायमेंशन होगा तो r का सानू x भी लिखना पैना y च भी लिखना पैना जे थ्री डायमेंशन केस होगा तो r को सानू x y z i j कैप की फॉर्म लिखना पैना तो बच्चे जे असि सिंपल फॉर x एक्सिस गल करिए फॉर वन डायमेंशन फॉर x एक्सिस ते फार्मूला पता की बनूगा x एक्सिस वास्ते इत्थे आ जाऊगा x सेंटर ऑफ मास फिर ना वेक्टर पाओ क्योंकि x एक्सिस अपने आप जी एक डायरेक्शन है की फार्मूला बन जाऊगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 आ फार्मूला जे तुसी x एक्सिस ते कदे भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना जिवें हुण आ पेन है पेन दी देखो सिर्फ एक x एक्सिस हुंदी है ना चाहे दी कल्ली तुसी y एक्सिस कह लो चाहे तुसी दी कल्ली z एक्सिस कह लो मतलब एक एक्सिस है ना तो अगर ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना तो फार्मूला ही ना याद है रखा जाऊगा कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करना सेंटर ऑफ मास का तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 जो दो तीन बारी बोलोगे याद रखो अच्छा जे ਅਸੀਂ y वास्ते गल करिए फॉर y एक्सिस तो y सेंटर ऑफ मास की होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन की होगा फिर m1 प्लस m सिमिलरली जे तुसी बच्चे z की गल करो फॉर z एक्सिस ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ याद होगा ਤੁਸੀਂ अपने बोल रहे होंगे भी आ लिखा जाऊगा तो सेंटर ऑफ मास है जेड़ा z एक्सिस वास्ते ठीक है वो क्या होगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन क्या होगा m1 प्लस एन का न्यूमेरिकल्स जो तुसी यूज करने का सी डायरेक्ट फार्मूला यूज करना क्लियर yes sir ओके ਹੁਣ एक चीज सोचो थोड़ा और ਇਹਨੂੰ सोच लिए जिवें मान लो ਆਪਾਂ ਇੱਕ पेन कंसीडर ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ मतलब पेन ਦਾ अगर सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ फाइंड करना तो किवें करांगे बड़ा सिंपल है बस विजुअलाइजेशन होनी चाहिए गल का ध्यान रखियो जिवें मान लो पेन है ठीक है पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ जिवें चलो ਇਹ ਤਾਂ पेन वाला चलो जी नहीं ये तो चलो इंटीग्रेशन इनो पर मान लो तुहानू ऐ कहता भी आ कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है ठीक है ते एक पार्टिकल इत्थे जिसका मास की है m2
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है एक्स एक्सिस है ना, ये किहड़ी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल का सिस्टम है ना, देखो दो पार्टिकल है m1 m2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। मान लो ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टेंस गिवन है, सपोज ए हैगा, सपोज कर लो 1 मीटर है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सेंटर ऑफ मास ਕਿਵੇਂ कैलकुलेट करना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। ਤਾਂ अलग-अलग तरीके ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने ਦੇ, ठीक है। एक तरीका ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ है कि ਤੁਸੀਂ ना ਜਿਹੜਾ मास m1 है उस m1 ਨੂੰ ना ओरिजिन मान लो, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ओरिजिन, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ओरिजिन ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ 0,0 0,0 क्यों लिखा, क्योंकि x भी 0 है ਤੇ y भी 0 है, ठीक है। ਤੇ सपोज कर लो भी ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ कोई भी एक पॉइंट मान लो। अच्छा जे इस पॉइंट ते है, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ डिस्टेंस है ਇਹ ना कोई डिस्टेंस होगा x, ठीक है। ਤੇ आ डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा दैट इज 1 - x। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ सेंटर ऑफ मास मतलब cm, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फाइंड करना ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ डिस्टेंस ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ x एक्सिस वास्ते, x सेंटर ऑफ मास जो ਅਸੀਂ फाइंड करना ਹੁੰਦਾ है, तो फार्मूला ਸੀ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन की सीगा m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास की सीगा ओरिजिन तो सेंटर ऑफ मास दी दूरी डिस्टेंस, वो मैं कितना लिख लिया थे, वो मैं लिख लिया x। ਇਹਦਾ मतलब मेरा फार्मूला मॉडिफाई हो गया, x इज इक्वल टू, अच्छा m1 ਇੱਥੇ बैठा आ बैठा m1, अच्छा m1 ਦੇ ਨਾਲ x1 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ 0, ਇਹਦਾ मतलब ब्रैकेट ਚ ਲਿਖ ਦੋ 0 प्लस m2, अच्छा m2 है, m2 ਦੀ ਇਸ ओरिजिन ਤੋਂ दूरी ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 मीटर, नीचे दोनों ਦਾ कर दो सम कर दो, मतलब जिवें मान लो कह दो भी ਜਿਹੜਾ मास m1 है ਉਹ मान लो 1 kg है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ मान लो 3 kg है, ठीक है। अपॉन कितना आ गया m1 प्लस m2, x इज इक्वल टू बच्चे m2 कितना अपने को 3 अपॉन नीचे कितना आ गया 3 + 1 4, तो बच्चे ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास 3/4 मीटर ਤੇ ਹੋगा। ऐसा कैलकुलेट, मैं दोबारा रिपीट करदा है, ਜਦੋਂ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है किसी भी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, चाहे m1 ਨੂੰ ओरिजिन ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ चाहे m2 ਨੂੰ ओरिजिन ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ m2 ਤੇ ओरिजिन ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, आंसर अलग-अलग होंगे, क्यों, क्योंकि देखो इधरों डिस्टेंस कितना x है, तो जो तुसी इधरों इनु सॉल्व करोगे फिर 1 - x आंसर आऊगा, मतलब 1 - 3/4 कितना आ गया है 4, मतलब फिर 1/4 आऊगा, मैं इसको करके दिखा देना। तो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ m1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ओरिजिन ਤੇ है, m1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ओरिजिन ਤੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ पोजीशन वेक्टर 0 है। अच्छा m2 दी ओरिजिन तो की देख ली, डिस्टेंस देख ली कितनी है 1 मीटर, पुट करता नीचे की करता टोटल मास। आ देखो मैं सेम एग्जांपल तो दोबारा करके दिखाना है, मान लो आ साडे कोले दो पार्टिकल्स ने, ਇੱਥੇ पार्टिकल बैठा जी m1, ਇੱਥੇ पार्टिकल बैठा m2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना ਹੈਗਾ, वो डिस्टेंस ਹੈਗਾ 1 मीटर, कितना 1 मीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ओरिजिन मान ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ मान लो ओरिजिन, ठीक है। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ सेंटर ऑफ मास, ਤੇ m1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ m1 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 1 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 3 kg, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ x, सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड करना है, लो लिखाओ की लिखूंगा दसो, बोलो बच्चे तुसी लिखाओ, जे x के हिसाब से नाम है ना चाहिए ना x सेंटर ऑफ मास लिख लिया करो, बोलो बच्चे कोशिश करो, कोई गल नहीं गलत सही डजंट मैटर, बोलो की लिखूंगा मैं, फॉर्मूला लिख देना मैं दोबारा, x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 अपॉन की m1 प्लस m2, बोलो की लिखूंगा
जल्दी बोलो, पर तो 2 मिनट रह गए। सर 1 हाँ जी 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस किमें आ गया जी? आ देखो मैं एक्स इथों x ले रहा ना, आ देखो m1 वैल्यू पुट करोगे, 1 m1 into कितना 1, 0. अच्छा x1 कितना है 1, मतलब 1 into 1 आ गया, प्लस m2 कितना है 3, अच्छा जेड़ा हुन x2 ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਲਿਆ ओरिजिन ਤੇ, मतलब आ होगा 0 अपॉन नीचे क्या होगा m1 plus m2, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 1/4, आ देखो आही आंसर बोला सी ना मैं, आ देखो चेक करो x = 1। तो बच्चे ये ना सोचो भी सेंटर ऑफ मास दे आंसर हमेशा सेम होंगे, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ऑब्जर्व कर रहे हो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ सेंटर ऑफ मास की है चेंज हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ सेंटर ऑफ मास की है चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी? ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 0,0,0, मतलब XYZ है जी 0,000 बड़ी 0 हो गया, जे XY है तो 0,0, जे सिंपल X है तो कला। ठीक है जी, कल नूं इहदे असीं बहुत सारे क्वेश्चंस की है स्टार्ट करांगे। ओके थैंक यू, टेक केयर।